Good morning, class 9. Today we will start the equation of motion, which is after the graph. In previous classes, we have learned the graphical representation. When now we will start the equation of motion, and this is the most important topic of this chapter because in this we will learn the formulas, the basic formulas of the motion. So before starting this topic, you have to revise the previous topic, the graphical representation. It means what we have to find out, keep into mind that if you use the speed time graph or velocity time graph, then the slope is known as acceleration, and we have to find out distance, we have to find out the area below there. It means what in simple language, if we find out the area below this graph in a speed time graph, we will find out distance. This idea and this concept should be in their mind. Now, before not wasting any time, we will start this topic today. There are basically three equations of motion. Okay? In class 9th, we have basically in class 9th in motion, there's three formula which we have to derive and we have to learn everyone. The first one is the first equation of motion. The equation of motion. The one is V equals to U plus AT. This is first one. Second, S equals to UT plus half AT square. Second one. And third, V square equals to U square plus 2AS. These are the three equation of motion formula of this topic. And every student have learned this formula and with their notation. Where here, the U known as initial velocity, V known as final velocity, S is what? Distance or displacement, whatever you use, and A acceleration, T time. Now to derive this all formula, we have to plot a graph or velocity time graph in x-axis and y-axis, where x is represent the time and y is represent the velocity. Here the origin O. Okay? In this graph we will take that velocity of any object is not zero. It means object is already started from already is moving. In this graph, we have taken that object is not from the rest, that is object is already in motion. Okay? मतलब इस ग्राफ में हमने क्या प्लॉट किया है कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो मोशन में पहले से ही है. तो ड्यूरिंग दिस मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u यानी इनिशियल. और ऑब्जेक्ट जहां तक मूव कर रहा है, जहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v यानी कि फाइनल. तो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पे होगी, तो हम इसको क्या मान लेंगे? u. ये क्या है? यहाँ 0 1 2 3 4 कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, तो u. तो ये हमारा पॉइंट क्या है? वेलोसिटी का v, यानी दिस इज नोन एज वेलोसिटी v. इसको नेमिंग कर देते हैं. नेमिंग कौन कौन से करेंगे? ये पॉइंट a, दिस पॉइंट b, c, d एंड दिस इज पॉइंट e. ठीक है, एक लाइन ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्पीड यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, और टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, 5 10 कुछ भी. यहाँ से यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया ना. तो हम ग्राफ को देखेंगे और फटाफट को सॉल्व करेंगे. वन थिंग मोर, ड्यूरिंग डेरिवेशन वी हैव टू राइट लेट द बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी u, v, x, y एंड z. ठीक है, तो हम जब भी एग्जाम कॉपीज में या किसी कॉपी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए क्लास 9, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा. हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मोशन चले जा रहे हैं, वो क्या है? v इक्वल टू u प्लस AT. फिर सेकंड क्या है? ये. थर्ड क्या है? ये. एग्जाम में कभी कभार क्या, कभी भी कोई एग्जामिनर कभी फर्स्ट पूछ लेता है, कभी सेकंड पूछता है, कभी थर्ड पूछता है. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहे वो पूछ सकता है. तो तीनों केसेस में ग्राफ हमारा यही रहेगा. तो हम फेयर कॉपी में ग्राफ एक ही बार बनाएंगे
ठीक है, उसके बाद तीनों डिराइव कर लेंगे। बट अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, तो ग्राफ आता है तभी आप यही ड्रॉ करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे। थर्ड आता है तभी ग्राफ यही ड्रॉ करेंगे और फिर ड्राइव करेंगे। और तीनों बार हम लोग कॉपी में एक ही बार लिखेंगे कि लेट इनिशियल वेलोसिटी इज यू इन टाइम टी, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी, ऐसे ये सब जो वर्डिंग्स होती है वो एक ही बार लिखेंगे। बट अगर बोर्ड एग्जाम से में आ जाता है या फिर वो आपके एनुअल एग्जाम या पहले एग्जाम से में आता है सेकंड के लिए, तो सेकंड में फिर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसको पूरा लिखेंगे। तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस ग्राफ को देखते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। यहाँ पे ए ओ क्या हो जाएगा, लेट हियर ए ओ क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा, वी। ये यू है, ये वी हो गया। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। तो वी की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ से कट के, वी का पुट अप करेंगे तो बी सी में किसके बराबर होगा, बी सी को पुट अप कर देंगे। तो बट बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी तो किसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हम बी सी को ऐसा लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और क्या ये आप दिखाई दे दीजिए, डी सी जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्या ये डी सी ओ ए के बराबर होगा, ये डी सी ओ ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए लिख सकते हैं। क्यों, सिंस डी सी इक्वल्स टू ओ ए, बिल्कुल होगा। तो यहाँ डी सी यहाँ पे ओ ए लिख सकते हैं। नाउ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। वैल्यू पुट अप करेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या है, वी, हम अभी निकालें, वी प्लस आर इक्वल्स टू बी डी प्लस और ओ ए हमारा क्या है, यू। तो ये क्या हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, है ना। नाउ इफ यू रिमेंबर द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, कॉपीज में स्पीड टाइम ग्राफ वहाँ पे ड्रॉप किया गया होगा। तो अगर आपको ये पता होगा, अगर इस लाइन का अगर हम निकाल देंगे स्लोप, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे तो क्या निकाल देंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, एक्सीलरेशन, क्योंकि हमको पता है कि इस लाइन का स्लोप निकालें तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन। और स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सीलरेशन तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ए डी। तो लिख लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी बी डी अपॉन बेस ए डी, और किसके बराबर है, एक्सीलरेशन ए के बराबर। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड। नाउ आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं क्या ए डी, क्या ये ए डी ओ सी के बराबर होगा। ठीक है ना, ये ए डी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। और ओ सी किसके बराबर है, टाइम टी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टाइम पे जो टाइम यहाँ टाइम टी लग रहा होगा। तो क्या ये लिख सकते हैं कि बट ए डी इक्वल्स टू व्हाट, ओ सी और इक्वल्स टू टाइम टी। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू बी डी अपॉन टाइम टी। तो बी डी को क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि बी डी को निकल गई, हमको ये निकल गया, बी डी को यहाँ पे क्या करेंगे, तो टप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमको क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू वॉट, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, सिंपल था। हमको ये मालूम था ये u है, ये v है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी के बराबर हो जाएगा। और डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर होगा। और ओ ए की वैल्यू है क्या, u। हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, इसका स्लोप निकाल देंगे और हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। ये एग्जाम्स में आते हैं डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डिराइव हो गया। नाउ मूविंग टू सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हम लोगों ने क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इफ यू फाइंड आउट द एरिया बिलो दिस लाइन, if you find out the area below this line you will find the total distance traveled by the object। हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि अगर इस लाइन के नीचे का अगर एरिया को हम फाइंड आउट कर देते हैं कि इसका कितना एरिया है, तो हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं,
एरिया निकालने के दो तरीके हैं. पहला, द फर्स्ट वन इज विच वी हैव ऑलरेडी टच, द एरिया इक्वल टू ट्रेपेजियम ABCD. इस ट्रेपेजियम के लिए निकाल दें. ठीक है. सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. इन दोनों के एरिया निकाल कर प्लस कर दें, पहला तरीका. और सेकंड तरीका है क्या, इस ट्रेपेजियम का पूरा एक बार में निकाल दें. तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे. हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, S निकालना है ना. तो निकालेंगे. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर, क्या जाएगा, OABC का इसका निकाल देंगे. और एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. ठीक है. तो पहले निकाल लेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो हाफ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात हो रही है. ठीक है. तो इस हाफ में बेस क्या हो जाएगा हमारा, AD. ठीक है, AD. और हाइट क्या जाएगी, BD. ठीक है. और AD किसके बराबर हो जाता है, OC के बराबर. अभी हम यहाँ लिख चुके हैं. ठीक है. और OC किसके बराबर है, टाइम. तो यहाँ लिख सकते हैं कि हाफ इंटू टाइम T इंटू BD हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में. देखिए हाँ, BD हम निकाल चुके हैं थर्ड से. वो क्या निकाले, AT. तो यहाँ पे BD के बाद अभी लिख देते हैं. लिखेंगे सिंस AD इक्वल्स टू व्हाट, OC इक्वल्स टू टाइम T. इसको अगेन लिख देंगे हाफ इंटू T इंटू AT फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. यहाँ से हम निकाल चुके हैं पहले ही, इसको दोबारा नहीं निकालेंगे. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू AT का स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, नाउ लिख देंगे, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ का हमारा कितना हो जाएगा, OC इंटू ब्रेथ OA. तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, टाइम T. और ब्रेथ कितना हमारे पास, U. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हो जाएगा UT. तो दोनों का एरिया निकल जाएगा. इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ. ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो यानी पुटअप कर देंगे. तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ABD क्या है, हाफ AT का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC क्या है, प्लस UT. तो डिस्टेंस सवाल क्या हो जाता है, किससे डिनोट करते हैं, S. तो S का क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे तो UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर. ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन.